Good morning, students. Today our topic is poverty. This is the challenge before the Indian economy. As you know, it's your unit 3rd. Current challenges facing by the Indian economy. यानी इंडियन इकोनॉमी के सामने कौन से ऐसे challenges हैं जो उसको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है that is poverty. यानी poverty is a challenge for disturbing the growth of Indian economy. ये एक current challenge है जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है. So before clearing the topic of poverty, I just want to clear who is a poor. As you know, there are the basic needs of a people. Majorly we just count the 3 basic needs of the people: food, shelter and cloth. But nowadays there are the 5 basic needs of a person: food, shelter, cloth, medical facilities and education also. Now the medical facilities and education is as necessary as the food, cloth and shelter. इन्हीं की तरह से ये भी जरूरी है. So first of all I want to clear that a poor is a person who's not efficient to just complete their basic needs. एक गरीब व्यक्ति वो होता है जो अपनी basic needs को भी पूरा नहीं कर पाता. So poor is a person who cannot fulfill their basic requirement. यानी एक व्यक्ति जो अपनी basic requirement, कौन सी basic requirement? Food, shelter, cloth, education और medical facilities, जो इन basic को भी पूरा नहीं कर पाता, he is the person who is poor, known as poor. Now according to the chapter, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ. यहाँ पर देखिए, while addressing the Constituent Assembly in 1947, Jawaharlal Nehru had said, "This is the achievement. Independence is but a step, an opening of opportunity to the great emperors and achievements that awaited us. The ending of the poverty and ignorance and diseases and the inequality of the opportunity." यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब फर्स्ट टाइम अपनी इंडियन पब्लिक को एड्रेस किया था, सिटीजन्स को, तो उनका कोटेशन क्या था कि हमने जो ये इंडिपेंडेंस गेट की, लेकिन नाउ वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. जैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है. पॉवर्टी को उन्होंने उस समय 1947 में भी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी उसे इंडिकेट किया कि जो पॉवर्टी है, ठीक है, एंड इग्नोरेंस एंड डिसीजेस, जो अनइक्वालिटी है, उसको सबसे पहले हमें दूर करना पड़ेगा. तो 1947 तब से लेकर आज तक पॉवर्टी इज अ बेसिक चैलेंज फेसिंग बाय द इंडियन इकोनॉमी. यानी इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो फेस किया जाता है, दैट जो बेसिक चैलेंज फेस किया जाए, दैट इज पॉवर्टी. नाउ हु आर पुअर. अब हम बात करें कि पुअर कौन कौन है, किसे हम पुअर की कैटेगरी में मानते हैं. All localities and neighborhood, both in rural and urban areas, there are some of you who are poor and some who are rich. अगर हम अपने आसपास देखते तो हमें दिखाई देता है कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और कुछ लोग अमीर. इस तरह की डिस्पैरिटीज हमें दिखाई देती हैं. अभी मैंने आपसे क्या, who is poor? Who cannot fulfill their basic need. एक व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, he is known as the poor. अब यहाँ पर देखिए, poor and vulnerable group in the urban areas. The poor people possess few assets and resides in tenements with the wall of baked mud and roof made of grass. यानी जो poor people होते हैं उनके घर कैसे होते हैं, कच्चा हाउसेस होते हैं, जो झोपड़ी जिसे हम कहते हैं उस तरह के वो बने हुए होते हैं. The poorest of do not even have a such dwelling. In rural areas many of them are landless. अगर हम गाँव की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, लैंडलेस है. Even if some of them possess land, it is only dry and wasteland. अगर किसी के पास है तो वो कैसी है, फार्मिंग के लिए सुटेबल लैंड नहीं है. Many do not get the have even 2 meal a day. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन में 2 बार का खाना भी नहीं मिलता. Starvation and hunger. Starvation मतलब भूखमरी जो है,
एंड हंगर आर द की फीचर ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। सबसे बड़ी कमी उनके घरों में क्या होती है कि उनके पास खाने को जो प्रॉपर डाइट होती है वो तो छोड़िए, लेकिन दोनों समय का उन्हें पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल, हैंस हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जो गरीब होते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है। पुअर पीपल ऑल्सो फेस द अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट। जो इनका अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट मतलब उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता, तभी तो वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। मालन्यूट्रिशन इज अलार्मिंग हाई अमंग द पुअर, और उनके अंदर कुपोषण का शिकार, मालन्यूट्रिशन कुपोषण के वो शिकार पाए जाते क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। इल हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड सीरियस इलनेस मेक्स देम फिजिकली वीक, और वो क्या हो जाते हैं पुअर पीपल फिजिकली वीक पाए जाते हैं। क्या कमियां हैं? इल हेल्थ, कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास सर्वाइव करने के लिए मनी नहीं होती है, डिसएबिलिटी होती है एंड सीरियस इलनेस, बहुत ज्यादा वो बीमारियों के शिकार माने जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एंड मनी लेंडर चार्ज, और जो गांव में है उनकी हालत तो और भी खराब है। कैसे? क्योंकि उन्हें अपनी बेसिक आवश्यकताओं के लिए बार बार लोन फैसिलिटीज के लिए डिपेंड करना पड़ता है। एंड मनी लेंडर चार्ज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट लीड देम टू द क्रॉनिकल इनडेबिटनेस, और यही कारण है कि बार बार उन्हें उधार लेना पड़ता है। तो मनी लेंडर्स कौन से होते हैं? जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, यानी जमींदार और जागीरदार है, उनसे वो क्या करते हैं? लोन लेते हैं, और लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो बहुत हाई इंटरेस्ट होता है। The poor are highly vulnerable. They are not able to negotiate their legal wages from the employers and are exploited. Employees जो होते हैं वो इतने गरीब हैं ये पुअर लोग कि अपने वेजेस के लिए भी वो सामने जो उनका जो एम्प्लॉयर है उससे बात वो नहीं कर पाते, कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। गाँव में तो ये हालत है कि बहुत सारे गाँव में बिजली की सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिलती। Their primary cooking fuel is firewood and cow dung, और वो अपने घर में भी जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? चूल्हे पे खाना बनाना, तो काउ डंग और फायरवुड का यूज करते हैं। A large section of poor people do not even have the access to safe drinking water, और जो बड़ा सेक्शन है वो क्या है? पीने का पानी भी उन्हें उपलब्ध नहीं है। There is a evidence of extreme gender inequality in the particular gainful employment, एजुकेशन एंड इन द डिसीजन मेकिंग विद इन द फैमिली। और वहां पर जो हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी जेंडर की वो कैसे कि फीमेल की हालत तो और भी ज्यादा कंडीशन खराब है क्योंकि उन्हें इक्वल वेटेज नहीं दिया जाता है। पुअर वीमेन रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे टू मदरहुड। ठीक है, बचपन से उन्हें क्या किया जाता है? जो पुअर पीपल्स होती हैं उनमें वीमेन्स का जो हाल है वो क्या है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले गरीब है तो वो अपने जो मेल चाइल्ड है उस पर वो मदर ज्यादा ध्यान देती है। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव बोर्न हेल्दी, और यही कारण होता है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो कम हेल्दी पाए जाते हैं। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई, जो इकोनॉमिक्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि द बेसिक ऑफ देयर ऑक्यूपेशन और ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। तो हम पुअर पीपल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं और क्या क्या एसेट्स उनके पास है। दे सेड दैट द रूरल पुअर पीपल वर्क मेनली ऑन लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो इकोनॉमिक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हु आर पुअर, कि पुअर वो व्यक्ति है कि जो लैंडलेस है रूरल एरियाज में, उनके पास अपनी खेती करने के लिए अपनी जमीन नहीं है। With a small land holding or landless laborers who are engaged in variety of non-agricultural job, तो एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते, नॉन एग्रीकल्चरल जॉब जैसे फिशरीज, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के कामों में लगे होते हैं। एंड टीनेंट्स कल्टिवेटर्स, और वो दूसरों के खेतों में क्या करते हैं? काम करके अपना काम निकालते हैं। द अर्बन, अब ये तो गाँव में हो गया, अर्बन एरियाज में आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर हु हैड माइग्रेट फ्रॉम अर्बन एरिया migrant to urban area in search of alternative employment and livelihood। ठीक है, अब यहाँ पर जो गांव से माइग्रेंट हुए शहरों की तरफ, शहरों में अगर हम बात करें तो कौन गरीब है? Those who are just migrant from the rural areas to urban areas in search of better alternative opportunities of education or
एम्प्लॉयमेंट, यानी जो गांव से शिफ्ट हुए, क्योंकि गांव में उनके पास जमीन नहीं है, तो गांव से कहाँ आए, शहरों की तरफ आए, इन सर्च ऑफ कि उन्हें वो जरूरत थी कि वो कैसे अपना रोजगार कमा सके. Migrate to the urban areas in search of alternative employment. Laborers who have do not variety of casual jobs and self-employment, who sell a variety of things on roadside and engage in various activities. अब गांव में तो हमने देखा those who are landless, those who are not working as a owner in their land, they are just tenant on other areas. तो इस तरह से गांव में हो गया. लेकिन शहरों में कौन गरीब है, those who are migrant from the rural areas to urban areas, वो गांव से शहरों की तरफ क्या हुए हैं, माइग्रेट हुए. ठीक है, तो इन्होंने देखा. और रोड साइड्स पे उनका वर्क क्या है, क्योंकि उन्हें कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो रोड साइड्स पे वो क्या करते हैं, वो अपनी चीजों को सेल करते हैं. नाउ द कॉन्सेप्ट व्हाट इज पॉवर्टी, कि पॉवर्टी है क्या. यहाँ 2 स्कॉलर्स हैं, शाहीन रफी खान एंड दामियन किलन, put the conditions of poor in a nutshell. Poverty is a hunger. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. यानी उन्होंने क्या कहा कि एक गरीब व्यक्ति वो है जो बीमार है, कमजोर है, लेकिन उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है. Poverty is not being able to go to the school, not knowing how to read. यानी पुअर व्यक्ति वो है या गरीबी वो है जहाँ आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज भी नहीं मिलती. Poverty is not having a job. Poverty is a fear of future, having food once in a day. Poverty is losing a children illness brought about by unclear water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया कि जब आपके पास ना तो मेडिकल फैसिलिटीज है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना आप अपने आप को कोई आपको फ्रीडम है, ना आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. नाउ हाउ पुअर पीपल विल बी आइडेंटिफाइड. आपने कहा द पुअर पीपल आर द पीपल हु कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. इवन देन उन्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, इवन देन उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, उनकी जो हेल्थ है वो बहुत वीक मानी जाती है, और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी नहीं है. नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज पीपल आर पुअर और नॉट. ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ देखिए. In India, to solve the problem of poverty, it has to find the viable or sustainable strategies to address the causes of poverty and design the scheme to help the poor out of the situation. और इंडिया में इस poverty को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने डिजाइन कर रखी है बहुत सारी स्कीम जो इन गरीबों को सुविधाएं दे सकती हैं. एंड इन प्री इंडिपेंडेंट India, Dadabhai Naoroji was the first person discuss the concept of poverty line. अगर हम बात करें कि who designed the poverty line सबसे पहले, तो Dadabhai Naoroji was the first man in pre-independent India who just talk or discuss about the poverty line. यानी दादाभाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिस्कस किया poverty line के बारे में. He used the many of the prisoners and used the appropriate prevailing prices to arrive what may be called to the jail cost of living. उन्होंने स्टडी कैसे किया ये, उन्होंने जो कैदी होते थे जेल में उनके डाइट को देखा और ये देखा कि कैदी कितना मिनिमम अपनी जो अपनी जीविका है उस पर खर्च करता है. Only adults stay in the jail, whereas in the actual society there are children too. Therefore, appropriately adjust the cost of living in the arrive the poverty line. तो ये तो बात हुई एडल्ट्स जो जेल में है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी ऐसे थे जो सोसाइटी में हैं जिनको अपनी बेसिक्स नीड्स नहीं मिल रही हैं. For this adjustment he assumed the 1/3. अब उन्होंने कैसे assume किया who are the poor? He assumed that 1/3 population consisted of children and half of them consume very little while the other of consume half of adult diet. तो उन्होंने क्या कहा कि जो कैदी तो जेल में, लेकिन जो सोसाइटी में चिल्ड्रन है वो 1/3 है, लेकिन वो अपनी डाइट का बहुत कम प्रपोर्शन ले रहे हैं. दिस इज हाउ टू अराइव एट द फैक्टर ऑफ 3/4. ठीक है, द वेटेड एवरेज ऑफ कंजप्शन, उन्होंने क्या किया, वेटेज एवरेज निकाला कंजप्शन का ऑफ 3 सेगमेंट्स गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन व्हिच कम्स विद द 3/4 of the
एडल्ट जेल कॉस्टिंग ऑफ द लिविंग। तो उन्होंने क्या किया, एक एवरेज बनाया कि किसे हम पॉवर्टी में रखें, पॉवर्टी लाइन के अंदर रखें और किसे पॉवर्टी लाइन के बाहर रखें। तो उन्होंने इसके लिए कंजप्शन को अपना बेस माना कि जो लोग इससे कम कंजप्ट करते हैं उन्हें हम क्या रखेंगे, पॉवर्टी लाइन में रखेंगे। इन पोस्ट इंडिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू वर्क, लेकिन दादा भाई नौरोजी तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले थे, तो उस समय तो क्या था, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिजाइन करने की बात की। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे इस पर वर्क हुआ। मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री एंड फॉर इंस्टेंस इन 1962 प्लानिंग कमीशन नाउ कॉल्ड एज नीति आयोग, और 1962 में जिसे पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था अब वो नीति आयोग है। फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप, उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया ताकि पॉवर्टी पे विचार किया जा सके। दैट इज कॉल्ड टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस। यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज टास्क फोर्स, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट जस्ट इज रन बाय द नीति आयोग। टास्क फोर्स टू प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। अब इस टास्क फोर्स ने कैसे किया कि वो देखा कि कितना कंजप्शन लोग कर रहे हैं। Was in 1989 or 2005 experts group were constitutes the same purpose beside the planning commission. Many individual economics has also attempt to develop the such mechanism. इसी तरह से आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने इस पे काम किया, लोगों की कंजप्शन की जो रेशियो है उसको निकाला और पता लगाया कि लोग किस इस लेवल से कम अगर कंजप्शन करते हैं तो वहां पर ये मान के चला जाता है कि कंजप्शन का जो लेवल अगर उनका कम है तो वो पुअर कैटेगरी में या पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। For the purpose of defining poverty, we divide people into two categories, the poor and non-poor, and poverty line separates the two. इसलिए हमने poverty line को डिजाइन करने के दो कैटेगरी में लोगों को रखा, एक poor और एक non-poor. There are many kinds of poor, the absolutely poor and the very poor. अब इसमें भी कैटेगरी कुछ बहुत गरीब है, कुछ एवरेज है, इस तरह से। There are various kind of non-poor also, the middle class, upper middle class, and the rich, every rich, the very rich and the absolutely rich. So अब हमारे पास प्रॉब्लम आई कि कुछ तो बहुत गरीब है, कुछ ऐसा है कि जो अपनी मिनिमम आवश्यकता पूरी कर पाते हैं, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि हाउ वी कैटेगराइज द पॉवर्टी, कि हम पॉवर्टी को कैसे कैटेगराइज करें। यहाँ पर देखेंगे there are many ways to categorize the poverty in such a way people always poor or those who are usually poor, यानी एक कैटेगरी हमने इसकी रखी जो हमेशा गरीब है और एक कभी कोई कंडीशन के कारण की गरीबी आई, but who many may sometimes have a little more money. Casual workers are grouped together as a chronic poor, लेकिन वो व्यक्ति जिसे कभी अच्छा व्यवसाय मिल गया तो उनकी जीविका चल गई, दे आर नॉन एज अ, जिन्हें कैजुअल वर्कर्स हम कहते हैं, रेगुलर इनका एम्प्लॉयमेंट ही उन्हें क्रॉनिक पुअर में लेते हैं। अनदर ग्रुप आर कर्निंग पुअर आर रेगुलरली मूव इन आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या ली, सब दैट इज क्रोनिक पुअर एंड द सेकेंड इज कर्निंग पुअर। सो हु आर नॉन एज द क्रोनिक पुअर एंड हु आर नॉन एज द कर्निंग पुअर, ये एक वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर the seasonal workers and the occasionally poor। अब occasionally poor कौन से हो गए, जो सीजनल वर्कर है, जैसे 6 महीने अच्छा काम मिला तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, लेकिन जब सीजन नहीं है उस वक्त में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो गए, दैट इज ओकेजनली, है ना, क्योंकि उनको ऑक्यूपेशन नहीं मिला इसलिए वो गरीब है। Who are rich most of the time but may sometimes have a patch of bad luck, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छे अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण वो 6 महीने अपना सर्वाइव नहीं कर पाते। They are called the transits poor and then there are those who are never poor and they are non-poor। ठीक है, तो उसमें कैटेगरी बताई गई कि वो पुअर जो जिन्हें सीजनल मानते हैं, हम इस तरह से सीजनल पुअर की कैटेगरी में मानते हैं। So it is clear right now. So
It is designed by the several schemes. There are different type of category of poors. कि हमने कैटेगरी ऑफ पुअर्स यहाँ पे डिजाइन की कि हर कैटेगरी में अलग अलग, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल गरीब हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरे साल पूरा नहीं कर पाते. सम आर कैजुअल वर्कर्स हु गेटिंग और सीजनल वर्कर्स हु गेटिंग द जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट नॉट रेगुलर बट मोस्ट ऑफ द 3 or 6 months in there. So they are just identified in the different category. तो हम पुअर्स को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसलिए हमने कहा they are known as the chronic poor, cunning poors are there, and occasionally poors and the transit poors are there. So poors की अगर हम कैटेगरी की बात करें, so there are the 4 categories in which we just classified the poors. यहाँ हमने बात की chronic poor, kernel poor और occasionally and transit poor. Now we just discuss about how we design our poverty line. हम बात करेंगे कि हम किस लेवल को माने कि those persons who are just getting the income, they are belongs to the poverty line or they are the below to the poverty line. तो हमने क्वेश्चन उठा कि how we design our poverty line, कि हमने अपनी poverty line को कैसे डिजाइन किया. Let us examine how to determine the poverty line. There are many ways to measuring the poverty. One way is to determine it by the monetary value. सबसे पहला क्या है कि मनी के रूप में उसको डिजाइन किया गया है. इसके लिए हमने क्या देखा है, और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी हर व्यक्ति अपने ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करता है, इससे हम पॉवर्टी को डिजाइन कर सकते हैं. मिनिमम कैलोरीज इनटेक दैट वाज एस्टिमेट और 2400 कैलोरी की 2400 कैलोरी इन गांव में, रूरल एरियाज में, एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज में. अगर हम मानते हैं दे अगर उससे कम करते हैं, दे आर जस्ट नोन एज द पुअर. इसी तरह से अगर हम एक्सपेंडिचर्स पे जाएं तो 860 पर पर्सन पर मंथ इन रूरल एरियाज, और अर्बन में बात करें दैट इज 1000 पर पर्सन पर मंथ. अपने ऊपर अगर इससे कम खर्च करता दैट इज नोन एज द पुअर, उसे हम गरीब मानते हैं. तो हमने दोनों से देख लिया, कंजप्शन से भी देख लिया कैलोरीज में, और हमने मॉनेटरी में एक्सपेंडिचर से, पर जो एक्सपेंडिचर है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया. Now through the government uses the monthly per capita expenditure MPCE. यहाँ पर आप फुल फॉर्म करेंगे MPCE, that is monthly per capita expenditure. Okay? Now the major problem is, economics states that the major problem with this mechanism is that all groups of the poor together does not identify between the very poor and the other poor. अब इकोनॉमिक्स के सामने प्रॉब्लम क्या है कि poor people are not, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. बहुत गरीब है, मिडिल में गरीब है, तो सब एक साथ रहते तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. This mechanism take into the account of expenditure on food and few selected items of proxy for income. Economics question its base. This mechanism is helpful in identify the poor as the group to be taken care by the government. ठीक है, अब उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, उनका एक स्ट्रक्चर बनाया. दोज आइटम्स दे आर यूजिंग, यानी उन्होंने एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर का स्ट्रक्चर बनाया. जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें देखा कितना लोग अपने उन बेसिक नीड्स पर खर्च करें. बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल था कि कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि इस ग्रुप में कौन गरीब है, कितना गरीब है. देयर आर मैनी फैक्टर्स लाइक दैट income, assets which are associated with poverty. For instance, the accessibility to basic education, health care and drinking water and sanitation. अब मेन चीज हमने क्या देखी, हमने देखा कि एजुकेशन लेवल से हमने देखा, हेल्थ से देखा, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज से, और सैनिटाइजेशन से हमने देखा कि क्या वो फैसिलिटीज वो एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दे नीड टू बी कंसीडर टू बी द डेवलप ऑफ पॉवर्टी लाइन. तो ये चीजें हमने क्या रखी, बेस में रखी, जिससे हम पॉवर्टी लाइन को डिजाइन कर सकते हैं. द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो डज नॉट take into the consideration of social factors that trigger and perpetuate poverty as illiteracy, ill health, lack of access of resources, discrimination of lack of civil and political freedom. लेकिन कुछ ऐसे social points of view थे जिससे भी हम
पुअर पीपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उनकी लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, या उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार माने जाते हैं, और रिसोर्सेज, उन्हें कितने रिसोर्सेज अलॉट किए गए हैं. The aim of poverty alleviation scheme should be improve the human life for expanding the range of things a person could be or could do such to be healthy or well nutrition. तो हमें वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी जिससे एक व्यक्ति हेल्दी हो सके और फुली न्यूट्रिशन हो सके. Development is about the removing the obstacles, the things that a person can do in life such as literacy, ill health and lack of access to resources. यानी जो डेवलपमेंट है वो किसे कहते हैं कि लोगों को जो एब्स्ट्रैक्ट रोक रहे हैं विकास करने के लिए, उन चीज़ों को, उन व्यवधान को कम किया जाए. दैट इज लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. यानी लोग गरीब क्यों हैं, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि उन एब्स्ट्रैक्ट्स को कम करें जिससे लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं. So the government claims that the high rate of growth, increasing in agriculture production, providing employment in rural areas and economic reform package is introduced in 1990. और ऐसा गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया कि 1990 तक हमने क्या किए उन्होंने कि उन्होंने जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ी है देश में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं. इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है. रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी. और यही कारण है, इन सब के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे गरीबी की जो प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है. इकोनॉमिक्स रेज डाउट अबाउट द गवर्नमेंट क्लेम. लेकिन जो इकोनॉमिक्स है गवर्नमेंट के क्लेम को डाउटफुल मानते हैं. दे पॉइंट आउट दैट द वे ऑफ डेटा आर कलेक्टेड आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द कंजप्शन बास्केट. methodology followed the estimate of poverty line and number of poor are manipulated to arrive at the reduced figure of the number of poor in India. तो गवर्नमेंट तो ये कहती है कि देखिए हमारा GDP बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया है, तो पुअर्टी कम हो गई है. लेकिन जो इकोनॉमिक्स हैं वो कहते हैं नहीं, ये जो हम डेटाज कलेक्ट किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, ये सब क्या किए गए, मैनिपुलेट कर दिए गए हैं. ड्यू टू द वेरियस लिमिटेशंस इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, स्कॉलर्स हैव अटेम्प्ट टू फाइंड अ अल्टरनेटिव मेथड. क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं तो स्कॉलर्स कभी किसी मेथड पे एक मत नहीं हो पा रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, अमर्त्य सेन, noted Nobel literature, has developed an index known as the SAN index. जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उन्होंने एक नया इंडेक्स डेवलप किया, that is known as the SAN index. There are other tools such as the poverty gap index and squared poverty gap, which we learned in next classes. तो यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने अपना अपना आइडेंटिफिकेशन लेवल दिया है. नाउ द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया. अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि पॉवर्टी लाइन इज डिजाइन बाय द कैलोरी बेसिस और द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स. नाउ हम बात करते हैं कि हमारे देश में गरीबों का प्रतिशत कितना है. व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल, दैट इज नॉन द हेड काउंट रेशियो. यदि हम देखते हैं कि देश में कितनी पॉपुलेशन है उसमें गरीब कितने हैं, तो इसे बोलते हैं हेड काउंट रेशियो. You might be interested to knowing the total number of poor persons residing in India. Where do they reside and their number of proportion decline over the years or not? When such comparative analysis of poor people is made in terms of ratio and percentage, we will have to identify idea of different level of poverty of people and their distribution. ठीक है. अब यहाँ पर प्रश्न था कि how many peoples are poor in India? कि कितने लोग भारत में गरीब हैं. तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से पीपल किस किस एरिया में कितनी गरीबी की लाइन है. द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज नाउ मेड अवेलेबल. लेकिन जो हम ऑफिशियल डेटा बात करते हैं, डेट इज प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग. हमने अभी बात की थी कि प्लानिंग कमीशन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है. और उसने अपने कुछ डेटाज बताए हैं किसके थ्रू, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. फुल फॉर्म लिखेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन called as the National Statistics Office, shows the number of poor and their proportion of population in India. यहाँ पर बताया गया 73 से 2012, 73 से 74, more than 320 millions people were below the poverty line. ऐसा कहा जाता है 320 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे.
और अभी रिसेंटली 2011-12 दिस नंबर हैज टू बी 270 मिलियन। तो गवर्नमेंट के अगर हम आंकड़े देखें तो 320 मिलियन से घटकर कितनी हो गई है, 270 मिलियन हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उनका मानना ये है कि डेफिनेटली पॉवर्टी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। नाउ in 1973 about 55% of the total population was below the poverty line। उनका कहना है कि 1973-74 में जहां 55% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे थी, वो 2011-12 में ये घटकर केवल 22% रह गई है। In 1973 more than 80% of the poor resides in rural areas। ऐसा कहा जाता है कि 80% गरीब कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। This situation has changed even in 2011-12. This means more than 3 or 4 poor in India still reside in villages। अभी क्या करें कि माइग्रेंट भी हुए हैं, कि हम मानते हैं कि 80% पुअर्स जहाँ थे 73-74 में, अब उन पुअर्स का जो हम देख रहे गाँव में थे वो भी माइग्रेंट होकर शहरों में, नाउ दे आर जस्ट अर्निंग देयर लिवलीहुड। इन 1990 द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज हैज डिक्लाइन। उनका ये कहना है कि जो गांव में है उनके पुअर जो लोग हैं उनका प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है, वेयर एज द नंबर ऑफ देयर अर्बन काउंटपेड्स आर इंक्रीज मार्जिनली। द पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन कंटिन्यूअसली फॉर द बोथ एंड अर्बन और रूरल एरियाज। उनका कहना है कि चाहे वो गाँव में है तो चाहे वो शहरों में, धीरे धीरे पॉवर्टी का लेवल कम हो रहा है। You will notice that during the 1973 to 2012 there has been decline in the number of poor and their proportion, but the nature of decline in the two पैरामीटर्स इज नॉट एनकरेजिंग। तो उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं कि रूरल एरिया में भी पॉवर्टी कम हुई है और जो अर्बन एरियाज है वहाँ भी पॉवर्टी का लेवल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो जो डेटाज है या जो हमारे सर्कमस्टांसेस हमें दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी अभी इतनी कम नहीं हुई है। The ratio is declining much slower than the absolute number of poor in the country। तो जो रेशो आप दिखा रहे हैं वो बहुत स्लोअर है। You will also notice that the gap between the absolute number of poor in rural and urban area got reduces, where in the case of ratio gap has remained the same until 93-94 has widened in 2011 and 12। तो आप ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली पॉवर्टी का जो रेशो है वो कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो गैप आप बता रहे हैं कितने पुअर्स कम हो गए, ये स्थिति एक्चुअलिटी में नहीं है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो नीति आयोग के आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं वो रेगुलरली इन डेटास को चैलेंज करते हैं कि अगर पॉवर्टी का लेवल इतना कम हो गया, अगर आप कहते हैं प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, फिर भी आज भी देश में पॉवर्टी की अगर इतना ज़्यादा आप कह रहे हैं फिर भी उसके आगे देश में पॉवर्टी की कंडीशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग मानी जाती है। यानी जो इसके लूप होल्स माने जा सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो शायद वर्कआउट उनका सही नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें लीगल प्रॉब्लम्स हैं ताकि जो उनका बेनिफिट है वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो इसका मतलब जो 1947 पे आइडेंटिफाई की गई थी एक प्रॉब्लम पॉवर्टी की जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, वो आज तक भी चल रही है। तो इतने लंबे समय के बाद भी, लगभग एक दशक हम पूरा करने को आ रहे हैं, एक शताब्दी पूरी करने को आ रहे हैं आज़ादी की, लेकिन 70 साल होने के, लगभग 70 साल के बावजूद भी हमारे यहाँ इस बड़े चैलेंज के लिए कोई खास इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, चलिए आज इतना ही करेंगे। इसमें जो आपको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, यू जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।